our next question is, how did animal domestication begin? How did animal domestication begin? As farming increased, people needed animals to work to help with the work. So animal domestication began. Dogs, sheep, goats, cows, chicken, etc. And humans trained the oxen and bulls to work in fields and pull carts as modes of transport. The dogs were trained to be loyal hunters and act as sheep guards. Sheep wool was used to keep humans warm. It is believed that people first began farming around 10,000, 12,000 years ago. BC, Syria, and okay. So, how did the animal domestication begin? How did we feel the need of animal domestication? As I told you before, that people needed helpers in their work. For farming, they needed helpers. For that, they think that animals can do more work because they have good strength. So they can use that strength in, completing the works, the course of farming. तो इसके लिए उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की. एंड व्हाट डिड दे यूज टू डू विद एनिमल्स? उन्होंने ट्रेन किया ऑक्सन एंड बुल्स को कि वो पुल करें कार्ट्स को. और आप अभी भी आजकल भी देखते हैं कि फार्मिंग के लिए ऑक्सन और बुल्स जो है वो कार्ट्स को पुल करते हैं और फिर वो डिक पीछे हो रहा होता है सारी ग्राउंड, और उसी में फिर वो सीड सो करते हैं. द डॉग्स वर ट्रेन टू बी लॉयल हंटर्स. ठीक है, डॉग्स को उन्होंने ट्रेन किया. वो हंटर्स भी, डॉग्स को हंटिंग के लिए भी ट्रेन किया और डॉग्स को सिक्योरिटी के लिए भी ट्रेन किया. सो दे वर ऑल्सो एक्टिंग एज शीप गार्ड्स. शीप वुल वॉज यूज टू कीप ह्यूमन्स वार्म. शीप वुल यूज हो रही थी टू कीप ह्यूमन्स वार्म. एंड सिमिलरली फ्रॉम काउज दे वर टेकिंग मिल्क एज वेल. और इसी तरह की दे वर यूजिंग इट, दे वर स्लॉटरिंग इट टू ईट द मीट ऑल्सो. तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो वी वर यूजिंग एनिमल्स फॉर ऑल दीज थिंग्स जो डेवलप होते होते आज भी आप इन सब कामों के लिए वी आर यूजिंग सच एनिमल्स. सो यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर that as farming increased, people needed animals to help with the work. So animal domestication began, and it began around 10,000 BC. आप dates भी इसके साथ mention कर सकते हैं. Name the, okay, the next question is, mention the dates and location of the following early civilization. This is a very very easy question. Civilization के names आपने इसी तरह write करने. You have to draw this table. Write the names of the 4 early civilizations, the beginning time when they began. And we learned about Mesopotamian civilization that it began in around 3500 BC. फिर Egyptian civilization 3100 BC में start हुई. Indus civilization started, when did it start? और Chinese कब start हुई? ये आपने find out करके write करना है. Location means the river with which this the area where this civilization was located. तो हमें पता है कि ये सब रिवर वैली सिविलाइजेशंस थी. मेसोपोटामियन जो है इट वाज बिटवीन द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज विद द रिवर नाइल के साथ थी. हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन इट वाज विद द इंडस रिवर. एंड चाइनीज सिविलाइजेशन वाज विद द येलो रिवर और शैंग रिवर. ठीक है, so this is very very easy question. You can do it all by yourself on loose sheets. The last question is, name countries where farming flourished first. तो हमारे पास कौन सी ऐसी countries हैं जहाँ पर farming ने पहले flourish किया? For that we have to read this out. Syria and Palestine were the first places where farming developed, mainly because they had a variety of plants and animals that could be domesticated. जी, तो जो हमारा question था उसमें हम एक और ये भी रीजन भी इंक्रीज करने जा रहे हैं. नेम कंट्रीज वेयर फार्मिंग फ्लरिश फर्स्ट एंड वाई. वहां पर क्यों फार्मिंग सबसे पहले फ्लरिश हुई थी? तो द आंसर इज हियर. सीरिया एंड पैलेस्टाइन वर द फर्स्ट प्लेसेस where farming developed, mainly because they had a variety of plants and animals that could be domesticated. तो ये वो रीजन था जिसकी वजह से इन कंट्रीज में सबसे पहले फार्मिंग डेवलप हुई. It is important to note that every plant and animal cannot be domesticated. ये तो एक कॉमन सेंस की बात है. आप लायन को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं कभी आप लायन से कार्ट पुलिंग का काम ले सकते हैं, या आप जराफ को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, अपने किसी यूज में ला सकते हैं, या आप वुल्फ को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं. ऑब्वियसली सब एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते. एंड दिस इज द केस विद एवरी प्लांट ऑल्सो. यू कैन नॉट ग्रो एवरी टाइप ऑफ प्लांट क्योंकि इट्स नॉट यूजफुल. एवरी टाइप ऑफ प्लांट विल नॉट गिव यू द फ्रूट दैट यू ईट. The modern countries of Iraq, Egypt, India, Pakistan and China became cultural centers that still influence the life today.
और आपको पता है इराक का मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सेंटर हो गया, इजिप्ट इजिप्शियन सिविलाइजेशन का सेंटर था, इंडिया और पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेंटर्स थे, और चाइना चाइनीज सिविलाइजेशन का सेंटर था. Did you know the modern day cultures and civilization owe a lot to the ancient civilizations that originated long ago? बिल्कुल हम ओ करते हैं उन सब civilizations को, because obviously अगर वो develop ना हुई होती तो आज हमारी जो countries आपको मैप पर नजर आ रही हैं ये ना होती. इनका स्टार्ट वहीं से हुआ था. There were no defined means of communication and hunting was the primary source of food. कितना डिफिकल्ट टाइम था आप एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि लोग आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते और उनको फूड के लिए रोजाना हंटिंग के लिए भी जाना पड़ता है. लेटर ऑन क्रॉप्स वर ग्रोन, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रॉप्स ग्रो होनी शुरू हो गई, एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, लोगों ने एनिमल्स को ट्रेन करना शुरू किया, एंड सोसाइटीज वर एस्टैब्लिश, और आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज जो है वो इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई. स्लोली मोर पीपल मूव्ड इनटू दीज एरियाज एंड विलेजेस और स्मॉल टाउन्स बिगैन टू डेवलप. वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने यहाँ पर मूव करना शुरू किया. ये छोटे छोटे विलेजेस जो हैं वो टाउन्स बनना स्टार्ट हुए और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज और सिविलाइजेशंस बन गई. The world's first cities may have developed as early as 9,000 to 10,000 BC in Damascus or Jericho. However, these individual cities do not qualify as civilization. हम इन cities को अलग से civilization इसलिए नहीं कह सकते because civilization जो है वो बहुत सारी किसी एक city से नहीं बनती. It must have a lot of cities, बहुत सारे लोग, language, religion, और आपको एक set of जो रिक्वायरमेंट्स थी जो आपको सिविलाइजेशन की डेफिनेशन में भी बताया गया है, वो सब चीज़ें जब होती हैं एक सोसाइटी में तो वो एज अ सिविलाइजेशन क्वालिफाई करती है. ठीक है. अ सिविलाइजेशन मीन्स सेवरल सिटीज यूजिंग अ कॉमन कल्चर बिटवीन ऑल ऑफ द सिटीज. अ सिटी स्टेट इज अ नेशन दैट इज ओनली वन सिटी. ठीक है. तो हम डमस्कस और जेरिको को इसीलिए सिविलाइजेशन नहीं कंसिडर करते क्योंकि ये सिंगल सिटीज थी, ये इसमें बहुत सारी सिटीज नहीं थी और ये कोई कॉमन कल्चर जो है वो शेयर नहीं कर रहे थे आपस में. ऑल राइट. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड this chapter very well. Inshallah, see you after summer vacation in school very soon, and I hope all this pandemic will settle down. Inshallah, you will be safe at home, we will be safe, and inshallah we are going to meet there, and you have to complete all the tasks that I have given you for this chapter and the previous chapters as well. आपको summer vacation task में इसी की learning दी जा रही है. We are not giving you any extra written work. Everything that we have given you through videos, you have to complete that, and you have to submit it till 1st of July in school. I hope that you all are doing your work very seriously. Inshallah, see you very soon. Allah Hafiz.